March, April, May, I have prepared for prelims. Okay. Uh, you can message me and we can discuss at what time you can call me. You can message me and I can give you the appointment. Okay. So हम discuss करेंगे कि हम कौन से time पे हम बात करेंगे. Okay. तो see because I am involved in lot of activities now, but हम एक fixed schedule रखते हैं. Okay. Yes. Then in March, April, May, I prepared. Let me tell you, friends, again, I prepared first time art and culture in April. First time I prepared art and culture in April. So just 2 months before exam, I was planning to leave art and culture entirely. But यहाँ पे हम everything, we will cover everything, each and every section in prelims. Each and every section in prelims we will cover and very holistically. Okay, my plan, we have given you the plan, so we will go according to the plan and we will cover each and everything in a holistic manner. उसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड है, लेकिन करंट अफेयर्स पे हम थोड़ा सा और कुछ करने का ट्राई करेंगे. ओके, सो फ्यू थिंग्स आई विल बी स्पीकिंग टुडे, यू हैव टू लिसन देम वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुली. Note these things. When I say note this down, you have to note it down. Okay. See, friends, many of you are of my age, many of you are my seniors, and many of you are my juniors. Okay. So whatever I have learned, it is just not the experience of my own. I guide around 10,000 students on my various platforms: YouTube, Facebook, WhatsApp, Telegram. Okay. So on every platform I am there. So I guide around 10,000 students. Okay, so every day I speak to 10 to 15 students, and every day I reply to at least some 20 students. So I get different types of query, and on the basis of that I formulated my own strategy to help the students. Because see, एक SWOT analysis important होता है. ओके, तो वो आपका SWOT एनालिसिस सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि आप कैसे करते हो. ओके, सो माय फ्रेंड्स, यू हैव टू फॉर्म योर ओन टाइम टेबल. जो हमारा टेस्ट सीरीज का टाइम टेबल है, आप उसके साथ आपका टाइम टेबल मैच करके आप ये उसमें बाकी चीजें ये ऐड करिए कि जो पीछे जो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, यू मेक श्योर दैट वॉट एवर वी हैव कवर्ड, you will be revising that again and again and again. Okay, so my approach here is we will cover syllabus holistically. In every week I'll be there with you, I'll be there to guide you. Because see, why people fail prelims, there are two things. They read whatever, like everything they read which is not important, that is also they read, they try to remember it और उसमें वो important बातें भूल जाते हैं. That is one thing. So they don't read which is important for the prelims. So focused approach नहीं होता है. Second, paper solving. They don't know how to solve the paper. And many of you has attended the discussion for the 2018, 19, 17. And I hope there is something you have learned from that. Okay. So that approach which I talk about, okay, जो approach है, we will discuss in every test. हम every test में ये देखेंगे कि क्वेश्चन को एक नए तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं. entirely new approach we need to solve these kind of question. Okay, तो ये इनकलकेट हैबिट इनकलकेट करने के लिए आपके साथ हमेशा वो डिस्कशन मेरा चलेगा. Okay, that mindset, you have to develop that kind of mindset. You have to develop very positive set of mindset to look at the things. See, there are many people who failed prelims twice, thrice, four times, but that does not mean or it does not mean end of the world. Okay, you have to keep on working on your skills, you have to keep on working. तो आप पहली चीज अभी ये सेशन के बाद आप ये एक चीज करेंगे, आप ये एक चीज करेंगे कि जो लोगों ने अभी तक अटेम्प्ट दिया है, जो लोगों ने अभी तक अटेम्प्ट दिया है, यू विल टेक वन पेज आउट एंड यू विल राइट डाउन your problems. Why did you fail in your previous attempts? Why did you fail in your previous attempts? Write it down. You have to write it down. Those
who will be appearing for the first time, you are preparing for the last 1 year, you write down your problems, the challenges and problems you have faced in your preparation, and send those pages to me. Okay, send as a individual message. This is one task I want to give you. तो आप लोग सभी लोग मुझे कल बात करेंगे. Everyone will speak me tomorrow. I will ask them to share one गूगल फॉर्म. तो गूगल फॉर्म नहीं करेंगे, ग्रुप पे ही डिस्कस करेंगे. सब लोग मुझे कल कॉल करेंगे. देयर आर फ्यू ऑफ माय स्टूडेंट्स आल्सो, ओके, जो ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट्स है. नाउ इट इज ऑप्शनल टू यू इफ यू वांट टू स्पीक टू मी और नॉट, बट दोस पीपल लाइक Mangesh is there, Naveen is there, then Bhushan is there, Bhavesh is there, okay, Shruti is there, uh, Dhanashri is there, Karan is there, okay. You people are my new students and you need to discuss these things with me, okay. तो ये सारी चीजें आपने मेरे साथ डिस्कस करनी है, ओके. लेकिन जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स भी है, वी हैव ऑलमोस्ट मेनी टाइम्स टॉक्ड अबाउट एंथ्रोपोलॉजी, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट प्रीलिम्स. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट प्रीलिम्स. तो आपका प्रीलिम्स का एक्सपीरियंस क्या था, तो हम ये भी डिस्कस करेंगे. तो हम ग्रुप पे इसका डिस्कशन करेंगे कि कैसे किया जा सकता है, ओके. सो एक तो ये बात है. तो यू विल राइट वन पेज डाउन, ओके. यहाँ से हमारा एक जर्नी स्टार्ट होता है प्रिपरेशन को एक नए तरीके से करने का, ओके. प्रिपरेशन को एक नए तरीके से मतलब थोड़ा सा डेप्थ में जाके. तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड्स टू गेट सक्सेस इन यूपीएससी, ओके. व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, एंड हाउ टू डू. Every topper will tell you. Every topper will tell you what to do, but nobody will tell you how to do it. And there are very few people who will tell you what not to do. Okay, तो हम यही चीजें सीखेंगे यहाँ पे. जैसे now geography, coming to the geography, let's discuss that out. Okay, so coming to the geography, please tell me how many questions they ask in UPSC prelims. Geography से कितने क्वेश्चन आते हैं? Geography, core geography, leave the mapping outside. मैपिंग छोड़ के ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आते हैं? 2 to 3. Oh yes, 2 to 3, मैक्सिमम 2 to 3 क्वेश्चन आते हैं, राइट. 2 से 3, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन, राइट अजय, ओके. तो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ओके. नाउ अगर इसमें भी देखा जाए, आई डोंट नो हैव यू ऑब्जर्व दिस और नॉट, दे आर आस्किंग क्वेश्चन ऑन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर और सॉइल जो इकोलॉजी का भी पार्ट है. So they are mixing. See, this ecology and geography, they are related and they ask the question ये दोनों concept मिला के they question ask. Now agriculture and soil पे soil conservation, conservative agriculture, ये question पूछ रहे एक या दो question. तो ये शंकर आईएएस में टॉपिक है. तो एक शंकर आईएएस में एक टॉपिक है, वो आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ओके. तो दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन के लिए आप कितना मेहनत करना चाहते हैं ये आपके हाथ में है. तो what we are going to read, yes, first we will be reading that in जो 11th का जो क्या नाम है उस एनसीईआरटी का, जो इंडिया का एनसीईआरटी है, जो इंडिया की चीजें है उसमें, what is the name of that एनसीईआरटी? I forgot the names of एनसीईआरटी. इंडिया फिजिकल, शायद इंडिया फिजिकली नाम है उसका. हाँ यस, इंडिया फिजिकली नाम है उसका, ओके. इंडिया फिजिकल एनसीईआरटी हम पढ़ेंगे और वो इंडिया फिजिकल एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. उसमें जो मॉनसून का टॉपिक है, सी आई एम टॉकिंग अबाउट द सिलेबस, हाउ टू रीड एंड व्हाट टू रीड, ओके. तो उसमें सॉइल्स का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसमें वेजिटेशन का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसमें वेजिटेशन, सॉइल्स एंड मॉनसून का टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है. मॉनसून का टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, ओके. सो पहले तो सारी इंडिया के फिजिकल चीजें वगैरह दी है, ओके. यू हैव टू रीड दैट, बट दीज 2-3 topics they are very important. Okay, these 2-3 topics they are very important for us, so cover these topics. तो बाकी सारी भी important है, लेकिन उसमें भी देख लेना कि आपको समझ जाएगा कि क्या important है क्या important नहीं है, okay. Also I will see the NCERT and उसमें भी और जो important चीज, have you seen that I have shared the notes of my soils notes? तो आपका soils note उससे cover हो जाएगा. You don't have to do anything except than that. Have you seen, I also shared the notes of vegetation. तो आपका पूरा टॉपिक उसमें मैंने कवर किया है. नाउ व्हेन यू रीड अबाउट द दिस मॉनसून, तो
तो शायद आपने कहीं कोचिंग अटेंड किया है या नहीं, आई डोंट नो, बट राइट दिस डाउन, राइट दिस डाउन। मॉनसून के साथ आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स करने हैं। इंडियन ओशन डाइपोल, इंडियन ओशन डाइपोल, एल नीनो, एल नीनो, लानिना, लानिना, दिस एनसो, दैट इज क्या है, एंडोस्मोस, एंडो एटमॉस्फेरिक नॉर्थ साउथ, क्या है वो एनसो जो है, ओके जो सदर्न ओशन में, जो अपना पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन में जो होता है, दैट इज एल निनो ओनली। तो ये सारी चीजें ये मनोजा सर ने अच्छा पढ़ा है। विजय, अगर वाजीराम के नोट्स है शायद अवेलेबल है ऑनलाइन, आई डोंट नो इफ दे आर अवेलेबल और नॉट, ओके। तो ये सारी चीजें कवर कर लेना, ओके। यस, इफ यू हैव देम सॉफ्ट कॉपी प्लीज शेयर देम हियर, ओके। इफ यू हैव द सॉफ्ट कॉपी प्लीज शेयर इट, ओके। वाजीराम के टीचर्स के सबके अगर शॉर्ट नोट आपके पास अगर नोट्स है करण, तो आप प्लीज शेयर करिए। आपके पास ये सब लोगों ने ये सॉफ्ट कॉपी अपलोड करके दिया है, ओके। इनका स्कैन्ड कॉपी अपलोड किया है कई लोगों ने, ओके। सो आपके पास जो भी है प्लीज अपलोड करिए यहाँ पे। तो हाँ, तो आई वाज टॉकिंग कि आपको ये सारी चीजें करनी है, ओके। देन वेजिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेजिटेशन में आप ये शंकर आयस से भी पढ़ेंगे, तो आप हम एनवायरनमेंट तो कवर करेंगे ये, ओके। लेकिन फिर भी अभी ऐसे भी हम वेजिटेशन पढ़ रहे हैं, तो शंकर आयस से भी साइमल्टेनियसली पढ़ लेना। सॉइल्स का टॉपिक भी शंकर आयस से भी पढ़ लेना, हमारे ज्योग्राफी से भी पढ़ लेना, ओके। देन जो 11th का दूसरा एनसीईआरटी है, दैट इज वर्ल्ड फिजिकल एनसीईआरटी। वर्ल्ड फिजिकल एनसीईआरटी से वो जो लैंड फॉर्म्स वाला टॉपिक है, दैट वाज दैट इज अ वेरी बोरिंग टॉपिक, बोरिंग टॉपिक। तो उससे ज्यादा चीजें आती नहीं है। सिर्फ ये देख लेना, सिर्फ ये देख लेना कि कौन सा लैंड फॉर्म कैसे फॉर्म होता है। डोंट गो इन द डिटेल्स, जस्ट you should know the concept only. They won't be asking question on that, okay? लेकिन वो जो अर्थ फॉर्मेशन का टॉपिक है, वो एक बार अच्छे से देख लेना। अर्थ फॉर्मेशन का टॉपिक उस पे 2018 में क्वेश्चन आया था, ओके। देन द क्लाउड्स टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, क्लाउड वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देन ओशन वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बाकी सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फिर भी आई विल अगेन लुक इनटू द एनसीईआरटी एंड आई विल अगेन टेल यू विच आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओशन वाला टॉपिक, ओशनोग्राफी इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेटोलॉजी इंपॉर्टेंट है, एंड बाद में देर आर लाइक सुनामी इज देयर, सुनामी इज इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये क्लाउड्स वगैरह तो क्वेश्चन आते ही रहते हैं, ओके। देन दिस विंड सिस्टम, विंड सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। करंट्स एंड विंड सिस्टम, तो करंट्स वगैरह देख लेना कि कौन से करंट्स है, कौन से करंट कोल्ड करंट है, कौन से करंट वार्म करंट है, कौन सा करंट कहाँ पे है, ये मैप में देख लेना एक बार, ओके। See, these are the things taught in Wajiram. लेकिन वो सर ने 14 टॉपिक लिए, दो that syllabus could have been covered in only 5 to 6 topics. Okay? आप तो अभी बहुत सारा प्रिपेयर कर चुके हो, तो ऐसा कुछ है नहीं कि उसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है, ओके। तो सारी चीजें इजी इजी है, यू हैव टू डू देम, ओके। तो ये सारी चीजें, दिस प्रोग्राम अगेन हैज स्टार्टेड ऑन ऑन द बेसिस दैट यू हैव रेड द सिलेबस। क्योंकि अभी ऐसे भी आपने 31st के हिसाब से प्रिपेयर किया है, सो यू हैव रेड एवरीथिंग। हियर वी आर गोइंग टू रिवाइज दोस थिंग्स, बट इन अ वेरी फोकस्ड एंड टारगेटेड मैनर, in a very focused and targeted manner, okay। Whenever it is required, I will try to give you more inputs, I will try to give you more inputs, okay। Then ये 11th का ये दो एनसीईआरटी हुआ। इन 12th एनसीईआरटी ह्यूमन ज्योग्राफी वर्ल्ड का पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। इंडिया का पढ़ना है, इंडिया का पढ़ने में भी उसमें भी दो ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मिनरल्स एंड एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर एंड मिनरल्स, ये दो ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वो कंडीशन पूछते हैं। लेट्स से टी, again that's why we have conducted the discussion. I think Karan, you were there in all the discussions, okay। Dhanashri also there, Ajay was there, okay, Rohit was also there, okay। In the three on all the three discussions we have seen that there were few questions which are on the topics, जैसे कि टी प्लांटेशन, जैसे कि राइस है, जैसे कि व्हीट है, ओके। ये सबका ग्रोइंग का क्या कंडीशन है, वो टॉपिक वाला पढ़ लेना। 12वीं का जो अपना एनसीईआरटी है इंडिया का, वो वर्ल्ड का पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, ओके। नाउ कमिंग टू द जीसी लियोंग, I have made one page, I am not able to get it,
I'm not able to get it. Let me find it. आप अभी तक ये पढ़िए, तो मेरे पास एक पेज है जिसमें मैंने पूरा जो सेक्शन बी है, I have represented that entire section B on one single page. वन सिंगल पेज पे मैंने किया है. आई आई एम नॉट, शायद मैंने कहीं पे अपलोड किया है, बट आई एम नॉट एबल टू गेट इट. ओके, तो वो एक पेज आपको दे दूंगा. शायद दूसरा है ना, एक 163 या 175 पेज नंबर है जिसिलियोंग का, वहां पे ऑल दोज थिंग्स सेक्शन बी का उन्होंने सारा सब कुछ एक ही पेज पे दिया है. ओके, वो पेज का फोटो अपलोड कर देना ग्रुप पे. ओके, आई डोंट हैव जिसिलियोंग विथ मी, तो वो पेज का एक फोटो अपलोड कर देना. तो वो पेज सबसे इंपॉर्टेंट है. और जिसिलियोंग से आप कुछ भी मत पढ़िए, मतलब आई वोंट रिकमेंड रीडिंग जिसिलियोंग. बहुत मतलब ठीक है, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है, लेकिन जस्ट गो थ्रू करिए, फास्टली फास्टली गो थ्रू करिए. लेकिन उसमें ऐसा कुछ पढ़ने जैसा लाइक, आप ये सिर्फ याद रखिए सर कि हाँ, वोल्केनो वाला टॉपिक में क्या क्या है, कौन सा टॉपिक को मतलब कौन से चीज को क्या क्या बोलते हैं. अगर वो कॉन्सेप्ट पूछ, लाइक एसिडिक इज देयर, एसिडिक क्या होता है, देन डोम क्या होता है, शील्ड क्या होता है, इफ दे आस्क दिस क्वेश्चंस. ओके, लेकिन आई डोंट लाइक जिसिलियोंग, आई डोंट लाइक रीडिंग जिसिलियोंग. ओके, जिसिलियोंग मतलब ठीक है, उससे क्वेश्चन आता भी नहीं है ज्यादा. ओके, आपके पास अगर मनोचा सर का नोट्स है, मनोचा सर का नोट्स और एनसीईआरटी पूरा है, मतलब उससे ज्यादा कुछ करने का जरूरत है नहीं. मैपिंग, मैपिंग का मैं एक पीडीएफ शेयर करूंगा, जो मेरे सारे वीडियोस है, सारे वीडियोस का कंपाइलेशन है मेरे पास, सारे वीडियोस का एक कंपाइलेशन किया गया है. आई विल शेयर दैट. आई विल आल्सो शेयर दैट इंडिया का फिजिकल मैपिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, सो वी विल ट्राई टू कवर इट. आई विल आइदर मेक वन वीडियो ऑन इट. ओके, आई विल ट्राई टू मेक वन वीडियो ऑन इट. ओके, सो वो एक तो वीडियो बनाने का मैं ट्राई करूंगा. ओके, तो आई विल ट्राई टू मेक वन वीडियो ऑन इट. ओके, uh, so these things are important. And yes, यही है, ज्योग्राफी का सिलेबस ही इतना है, बिकॉज देर आर 2 to 3 क्वेश्चंस, हमें ज्यादा पढ़ने का जरूरत भी है नहीं. ओके, वी हैव टू रीड दिस मच कंटेंट ओनली, वी हैव टू रीड दिस मच कंटेंट ओनली. पास्ट ईयर क्वेश्चंस अपना मृणाल है या अरिहंत का है? हाँ, एक मेरे पास एक दीक्षा का शायद पीडीएफ है, मैं शेयर करूंगा वो. ओके, वो मेरे पास एक पीडीएफ है, आई विल ट्राई टू शेयर दैट पीडीएफ. ओके, तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस अभी यही पैटर्न करना, पैटर्न यही रखेंगे. अभी आपका टेस्ट शायद सैटरडे या संडे को टेस्ट होगा, तो टेस्ट का डिस्कशन भी होगा. तो हमें पैटर्न यही रखना है कि before starting the next week's syllabus, we will I will slightly go through the past year questions, and we will simultaneously, वो सेशन में ही मुझे याद दिलाने का है कि सर हाँ, पास्ट ईयर क्वेश्चन में भी देखना है, तो हम थोड़ा सा पास्ट ईयर क्वेश्चन भी करें. वेरी गुड थिंग यार, ऐसे इनोवेटिव पॉइंट मुझे बताते चलो. ओके, सो दैट्स हाउ वी विल ग्रो. अगेन पीपल, लेट मी टेल यू, आई एम नॉट योर टीचर, आई एम नॉट योर टीचर, आई एम just treat me like uh, your best friend who is trying to help you genuinely. But I have to be teacher, I have to be teacher, because sometimes I have to be harsh on you if you are not performing, if I have to be harsh on you. And that is only because I want your welfare, I want you to perform. Okay, so दोस्तों, मेरा यही मतलब, आई डोंट वांट एनीथिंग इन रिटर्न. ऐसा नहीं है कि आप अगर सर्विस में सेलेक्ट हो जाए तो आप मतलब मेरा नाम ले, ऐसा मुझे, आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम एनी स्टूडेंट ऑफ माइन. ओके, सो बट yes, see, I am trying to break that barrier, Karan, I am trying to break that barrier. Okay, see, um, uh, again, so let me just briefly tell you behind the reason behind starting this program. My few students know this. When I was preparing for the civil services, I used to text toppers. Okay, so I had this hope that sometimes maybe they will respond me and they will tell me how to start preparation, and how to, like,
एटलीस्ट दे विल टेल मी ओके कि हाँ प्रिपेयर कैसे करे, क्या चीजें नहीं करे, जैसे विच आई डिस्कस विथ यू कैसे करे. ओके सो बट I texted those people. I messaged on WhatsApp. I messaged on Telegram. I messaged on I text message किया. Okay. फिर भी I never got any reply from any topper. So on that day, like when in the first attempt itself, I cleared prelims. Uh, so I get emotional while telling this because see ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा जर्नी ये है, सबका जर्नी ऐसा ही है, सभी एस्पिरेंट का ऐसा ही जर्नी है. बट लेकिन हम अगर सभी लोग वैसे ही करेंगे तो ये चेन ब्रेक कब होगा फिर. ओके सो व्हेन आई स्टार्टेड व्हेन आई क्लियर्ड प्रीलिम्स so there was no one to guide me for mains. And let me tell you friends, if it is your first attempt, if it is your first attempt and if there is no person to guide you for mains, then you will fail in mains. बिकॉज मेंस का सिलेबस ही ऐसा है कि आपको क्या नहीं करना है ये पहले सीखना पड़ता है. तो मैंने at that time I used to message these officers. Okay, I used to message these officers and I didn't get any reply. So the person who used to guide me, that person failed UPSC 4 times. लेकिन मुझे पता है कि यूपीएससी पास करने वालों को ही सब कुछ आता है, ऐसा नहीं है. ओके जो लोग फेल करते हैं उनको बहुत ज्यादा आता है बिकॉज दे नो व्हाई डिड दे फेल. So I respected that person. Okay, I respected that person, so I asked him. So but on that day itself I decided that it won't happen with any person. Like at least I can try, at least I can try to help number of students. Okay, I got selected on 5th of April and in a month I started channel UPSC preparation. And my entire approach, I try to keep that approach very simple, very humble approach, very grounded approach. That's why I don't believe in elitism, because elitism से सिर्फ distance बढ़ता है. Okay, so why are we going to civil services? If you want to be elite, then why don't you join any corporate service? If you say in interview that I am joining this service, I am joining this service to help the people, then if you are not helping your own community, that is civil services people, then how will you service the people? So with that thing in my mind, I started UPSC preparation channel. And उसके बाद मैंने after that I thought okay there should be one discussion platform. Then I started this discussion platform. Then I started one another channel for anthropology. And uh, then came this IS Delhi, Gajanan sir, Adesh sir. Again they guided me in my interview preparation. I was fortunate that Gajanan sir and Adesh sir also, they guided me in my interview preparation. And they helped me during those days. And we are in direct contact. So it is always to have someone. Okay कि हाँ okay, if you don't know something you can at least talk to that person. Okay, so then see certain things change when you get selected. Now after my selection, now I have got 100 mentors. Now every selected person I can talk to. Okay, now I can call all India rank 1. I can get his guidance. But what is the difference? Okay, ऐसा नहीं कि उनको बहुत ज्यादा पता है या आपको कम पता है, सभी को उतना ही पता होता है. But there are thousands of factors in UPSC. See, people again, लेकिन इससे ये मत करना कि अच्छा जो भी रिस्पेक्ट है टॉपर्स के लिए वो कम मत होने देना, because they have worked hard. They have worked hard to reach to this level. Okay, लेकिन let me tell you friends, there are thousands of factors. There are thousands of factors in UPSC. Now आपका एक भी फैक्टर आपका एक गलत कदम और आपको UPSC से दूर रख सकता है. Like now let's say many of you can write very good mains.
लेकिन आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा। ओके, सो कभी अभी मतलब व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग आल्सो, आई यूज्ड टू थिंक दैट टॉपर्स आर लाइक गॉड, toppers are like god. Okay, they are also human beings. Because see, always say they, because I don't think I am one of them. I always think that I am still an aspirant, because I am still learning many things. Okay, so you are the part of the service. You are aspiring for it. So one day you people will join it. Okay, so one day you will join it, and one day you will be the part of service. Okay, so just I am one facilitator to help you achieve your dream. Okay, so my approach, I want to keep it very humble, very grounded, so that everybody can follow. Everybody should be able to follow whatever approach I'll be talking about. Okay, तो हम बहुत सिंपल तरीके से, बहुत अच्छे से, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करेंगे. We won't leave any single thing. We won't be leaving any single thing. Okay, so shall we do any institutional sectional test with our geography preparation this week? It is up to you. Okay, we are providing one test to you. If you ask me, I can provide you good tests also. Just say, if you ask me, if you want to solve more tests, maybe I can suggest you, or I can upload them here. Okay, I can upload. I have selected good tests from forum, then insights, then आयुष बाबा, then वाजीराम. Okay, ये सबसे मैंने कुछ सेलेक्ट किए हैं. और आई हैव सेलेक्टेड फ्यू टेस्ट फ्रॉम सी सैट ऑल्सो. सी सैट के कुछ किए हैं, करंट अफेयर्स के कुछ किए हैं. आई हैव कंपाइल्ड देम. ओके, इफ यू वांट टू सॉल्व देम, okay, I can also share them. I want to have this diversity. Okay, again, see, we are not egoistic about our own program. आप इनसाइट वाला कभी नहीं बोलेगा कि आप जाके विजन का सॉल्व करो, नहीं. Because these platforms are run by the students. These platforms are run by the students. And I want you to form the timetable. I want you to cooperate. I want you people. Okay. डोंट वरी यार. सी सैट के लिए मैं अभी आज आज या कल में ही शेयर कर दूंगा टेस्ट. सी सैट के लिए देयर आर थ्री टेस्ट विच आर सेक्शनल टेस्ट. उसमें बहुत अच्छा मॉडल आंसर भी है. ओके, सी पीपल, मैंने पहले भी बोला है, अभी भी आई विल बी शेयरिंग दिस विथ यू. हम ये डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म रखेंगे. whatever you will demand, I will try to match that level. Okay, whatever you will be demanding, I will try to match that level. तो यही है ये इनिशिएटिव चालू करने का. लाइक मेनी पीपल आर थिंकिंग दैट दिस इज जस्ट अनदर टेस्ट सीरीज. नहीं है, टेस्ट सीरीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. बिकॉज आई से टू पीपल, ओके, टेस्ट सीरीज आप विजन का टेस्ट सीरीज क्यों ज्वाइन करते हो? विजन का टेस्ट सीरीज तो आप घर पे भी सॉल्व कर सकते हो, राइट? लेकिन then why did I start this initiative? Because I know people are preparing in the wrong direction. So यहाँ पे one to one interaction with me and mentorship. Okay, mentorship is the core theme here. You will be preparing with me. Even those tests you will be solving, I will be solving those tests. नहीं नहीं, टेस्ट अब लेट मी फिनिश फर्स्ट. ज्योग्राफी का तो इतना ही प्रिपेयर करना है. ज्योग्राफी हम ऐसे ही प्रिपेयर करेंगे, इतना ही प्रिपेयर करेंगे. ओके, ज्योग्राफी में हमारे इंस्टीट्यूट का एक टेस्ट रहेगा. आई विल शेयर वन एक्स्ट्रा टेस्ट विथ यू. लेकिन हमारा डिस्कशन इंस्टीट्यूट के टेस्ट के या इस पर ही होगा. इंस्टीट्यूट का जो भी टेस्ट होगा हम वही डिस्कस करेंगे. जो आपका दूसरा टेस्ट होगा, यू हैव टू सॉल्व दैट ऑन योर ओन. आई विल प्रोवाइड यू एक्सप्लेनेशन ऑल्सो. जो बाकी टेस्ट मैं शेयर करूंगा उसका मैं एक्सप्लेनेशन भी शेयर करूंगा.
Okay, so people, again, I'm telling you, this is a democratic platform. Okay, so yes, I will be addressing your questions. I'll be addressing your questions. तो ज्योग्राफी का तो इतना ही है. ओके, ज्योग्राफी हम इतना करेंगे और ज्योग्राफी का टेस्ट होगा. आदेश सर, व्हेन विल बी हैविंग टेस्ट, सैटरडे और संडे? Saturday. Okay, yes, we will be having test on Saturday and discussion will be on Saturday itself. Discussion, should we keep discussion on Saturday or Sunday? ये ग्रुप पे डिस्कस कर लेना, सैटरडे डिस्कस रखना है या संडे डिस्कस रखना है. ओके, मुझे लगता है सेम डे रखेंगे तो हमें मतलब फिर संडे को थोड़ा सा सी सेट करने का ट्राई करेंगे. नाउ यू पीपल डिसाइड ऑन द ग्रुप. आप लोग डिसाइड कर लीजिए. ओके, सी, आई वांट टू टॉक यू दिस. आई वांट यू पीपल to behave like you are a family. You are not competitors, people. आपका बाकी 4 लाख लोगों से कंपटीशन है, ये 10 लोगों से नहीं है आपका कंपटीशन. यू आर नॉट कॉम्पिटिटर्स ऑफ योर सेल्फ. सो खुल के शेयर करिए. आपका जो भी मटेरियल है खुल के शेयर करिए. ये 10 लोग आप अगर आपके साथ सेलेक्ट भी होते हैं ना, दीज 10 पीपल विल बी योर बेस्ट फ्रेंड्स, क्योंकि आप इनको पहले से जानते हैं. Okay, so they are not your competitors. They are not your competitors, they are your friends. So whatever material, see, I share my notes, like, I don't think that there is any problem of sharing any notes, because that is knowledge. ऐसा नहीं है कि वो notes मैंने खुद से लिखे हैं. I have compiled from them. अगर मैं compile कर सकता हूँ तो anybody can compile them. Okay, so people, here I want you to behave like a family. So हम यहाँ पे नोट्स भी बनाएंगे. आई विल टेल यू हाउ टू डू इट. हम नोट्स बनाएंगे, मिलके बनाएंगे, सभी सभी जन मिलके बनाएंगे. हम कुछ भी करेंगे लेकिन ये प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, क्लियर करके रहेंगे. एट एनी कॉस्ट वी विल क्लियर दिस प्रीलिम्स. सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर नहीं करेंगे, ये अटेम्प्ट क्लियर करेंगे और रैंक लेके आएंगे. बस आई वांट योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन. I want your genuine hard work and dedication from all of you. My promise is I will be there with you. I will be there with you. Okay, that is my promise to you at every stage of your preparation. Whatever help you need, prelims, mains, interview, at every stage I will be there with you. Okay, so I will address few queries here. Sir, what should be the ideal study routine? Ideal study routine ऐसा कुछ होता नहीं है. आइडियल स्टडी रूटीन नहीं होता है, इंडिविजुअल स्टडी रूटीन होता है. वो आप पे डिपेंड करेगा आप कैसे करना चाहते हो. ओके, तो सी, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन. आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन. आई लाइक टू स्टडी टिल 2 PM. ओके, मैं रात में 2 AM इन द मॉर्निंग, तो मैं रात में 2 बजे तक पढ़ता था. देन आई यूज्ड टू वेक अप एट 9 AM. ओके, लेकिन आप मुझे 12 से 13 घंटे देंगे, 12 to 13 hours every day. ओके, लेकिन अभी ये आगे के 3-4 दिन आप एनालाइज करेंगे खुद का. आप ये देखेंगे कि आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे पढ़ने बैठते हैं, कितना टाइम पढ़ते हैं, कितना टाइम खाना खाते हैं, कितना टाइम सोते हैं, कितना टाइम चाय पीते हैं, कितना टाइम टीवी देखते हैं. एवरीथिंग यू विल एनालाइज. You will write it down for 2-3 days. You will write it down for 2-3 days. यहाँ पे जितना टाइम टीवी देखते हैं कट करेंगे, जितना टाइम खाने में 1 घंटा लगता है आधा घंटा टाइम करेंगे. ये सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं है दोस्तों, इसीलिए मैं बोलता हूँ यहाँ पे आई विल बी स्टडिंग विथ ऑल ऑफ यू. आई स्पेंड एवरी डे आई स्पेंड 10 hours. आपको शायद पता नहीं है आपको शायद पता नहीं है, आई एम वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग 12. अभी सुबह शायद
10-11 बजे से आई रिकॉर्डेड वन वीडियो इन द मॉर्निंग। देन आई स्टार्टेड विद 12, जो 12 पीएम है, मुझे एंथ्रो के कुछ कॉपी इवेलुएट करने थे, मैंने एंथ्रो के कॉपी इवेलुएट किए। उसके बाद में देयर वाज योर डिस्कशन एट 6। तो उसके लिए मुझे 2017 का पूरा पेपर खुद से सॉल्व करना पड़ता है, उसका एनालाइज करना पड़ता है कि पॉलिटी के कितने थे, कैसे सॉल्व करना है।